Subscribe and press bell icon to get notified of all the upcoming lectures. Today's topic is about the regulation of glycogenesis and glycogenolysis. So glycogenesis is the synthesis of the glycogen, and glycogenolysis is the breakdown of the glycogen into glucose. So glycogenesis and glycogenolysis, these are the two different pathways, different processes. So how these processes are regulated? So before studying the regulation of these two different pathways of different processes, what is glycogen? So glycogen is the storage form of glucose in animals. So why the human needs the glucose? So glucose basically provides the energy to perform the various functions of the cells, right? So how these two processes are regulated? These two processes, glycogenesis and glycogenolysis, are regulated by the enzymes. There are two important enzymes, और भी enzymes होते हैं, but the two important enzymes that regulate these processes are the glycogen synthase and glycogen phosphorylase. So glycogen synthase, this enzyme is important. This enzyme is important for the is used for the synthesis of the glycogen. ठीक है, जो क्या करता है? Glycogen synthase, as the name indicates, glycogen synthase. Synthase means synthesis. So this enzyme synthesize the मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लाइकोजन. ठीक है, जब भी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल ज्यादा होता है, नॉर्मल से एक्सीड कर जाता है, देन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रखने के लिए क्या किया जाता है? उसको ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन की जाती है. दैट ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज यूनिट्स की, ये बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है. तो उसको क्या किया जाता है? ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है. तो ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है ब्लड सर्कुलेशन से लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है. सो द एंजाइम इज द ग्लाइकोजन सिंथेस. दिस एंजाइम is important. This enzyme is involved in the synthesis of the glycogen. So the process is known as glycogenesis, right? So in the glycogenesis, this enzyme glycogen synthase is involved. The other enzyme that is important in the regulation, that's the glycogen phosphorylase. So glycogen phosphorylase, this enzyme फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, जो क्या करता है? जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है या फास्टिंग स्टेट होती है, देन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए, उस लेवल को नॉर्मल करने के लिए क्या किया जाता है? एंड इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइट इन द फास्टिंग स्टेट, ग्लाइकोजन जो है उसकी वापस से ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में. ठीक है, तो वो जो ब्रेक डाउन होती है, द इम्पोर्टेंट एंजाइम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो आपके पास होता है ग्लाइकोजन phosphorylase. So glycogen phosphorylase is involved in the regulation of the glycogenolysis. ठीक है, तो glycogenolysis में जो आपके पास एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है glycogen phosphorylase. So glycogenesis and glycogenolysis are the two opposite pathways, are the two opposite processes. So which pathway is to be activated or which pathway is to be inhibited depends on the level of the glucose, or depends on that how much glucose is to be needed by the body. So these enzymes regulate the control the glycogen metabolism, but these enzymes are also controlled by some other mechanisms, that hormones, there are hormones that regulate these enzymes. There is hormonal regulation and there is allosteric regulation. There are two types of regulation for these enzymes. ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस के लिए जो है हार्मोनल रेगुलेशन भी होती है और allosteric रेगुलेशन भी होती है. We will look into detail one by one. पहले हम हार्मोनल रेगुलेशन को देख लेते हैं, ताकि how hormones regulate these enzymes, and these enzymes are involved in the glyconeogenesis and glycogenolysis. Okay, so these hormones that are involved in the regulation of this glycogen metabolism, वो कौन से hormones होते हैं? That's are the glucagon and epinephrine. Okay, so these two hormones, glucagon and epinephrine, क्या करते हैं? उन pathways को regulate करते हैं, उन mechanisms को regulate करते हैं. And there is allosteric regulation. Allosteric regulation में आपके पास जो है वो कौन से molecules involved होते हैं? That's the glucose 6-phosphate, ATP and AMP, adenosine triphosphate, adenosine monophosphate. So these three are involved in the allosteric. They allosterically regulate the these two different pathways. Okay, so hormonal regulation, सबसे पहले हम देख लेते हैं
ग्लाइकोजेनेसिस को. सो ग्लाइकोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल. The main important enzyme in the regulation of glycogenesis, in the glycogenesis process, जो main उसका enzyme है वो आपके पास क्या होता है, glycogen synthase होता है. So how this glycogen synthase is regulated? This glycogen synthase is regulated by the phosphorylation and the dephosphorylation mechanisms. So glycogen synthase when it is in the active form, ठीक है, जब वो active form में होता है तो उस वो आपके पास जो है glycogen synthase A होता है, ठीक है. So glycogen synthase A is the active form, जो आपके पास क्या होता है, dephosphorylated form होता है, मतलब उसके साथ phosphate attach नहीं होता, ठीक है. When glycogen synthase जब इसकी phosphorylation होती है, जब phosphate attach होता है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है, इनएक्टिव होता है ग्लाइकोजन सिंथेस बी, ठीक है. तो ग्लाइकोजन सिंथेस ए इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है. तो जो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट विल बी द ग्लाइकोजन सिंथेस ए, ठीक है, जो उसकी क्या होगी, डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होगी. और अगर if you don't need the glycogenesis and if you want to inhibit the glycogenesis then उसकी फिर क्या की जाती है, ग्लाइकोजन सिंथेस की अगर फॉस्फोरिलेशन कास्ट कर दी जाए, ठीक है, तो फॉस्फोरिलेटेड स्टेट ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेस आपके पास क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है. सो जब ये इनएक्टिव हो जाएगा ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है, इट विल बिकम ग्लाइकोजन सिंथेस बी, तो आपके पास क्या होगा कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी, राइट. सो दिस इज दी के आपके पास ये क्या है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है. ग्लाइकोजन सिंथेस का क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेस जो है आपके पास वो जस्ट एडिशन करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, 1,4 लिंकेजेस की, एंड दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन, ठीक है, जो क्या करता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, राइट. अच्छा, तो हाउ दिस ग्लाइकोजन सिंथेस इज रेगुलेटेड, कि उसकी फॉस्फोरिलेशन और डिफॉस्फोरिलेशन जब होती है ग्लाइकोजन सिंथेस की, ठीक है, दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन, डिपेंड करता है फीडबैक मैकेनिज्म पे, हार्मोन्स पे, ठीक है, कि जो है ब्लड में या ह्यूमन बॉडी को कितने ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है. अगर बॉडी इफ इट रिक्वायर्स द ग्लाइकोजन, ठीक है, अगर उसको ग्लूकोज की जरूरत है तो फिर आपके पास क्या होगा, दिस प्रोसेस हैज टू बी स्टॉप. ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन तब होती है व्हेन यू डोंट नीड द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जब ग्लूकोज को जो है आप यूटिलाइज नहीं करना चाहते हो तो उसको क्या किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है. और जब ब्लड में ग्लूकोज की जरूरत हो तो फिर क्या किया जाता है कि इस ग्लाइकोजन सिंथेसिस को स्टॉप किया जाता है. ओके, सो जो मेन हार्मोन्स हमने पढ़े कि कुछ हार्मोन्स होते हैं ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन, जो क्या करते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं. हाउ दिस एंजाइम रेगुलेट द ग्लाइकोजन सिंथेस. और फिर हमने भी देखा कि ग्लाइकोजन सिंथेस की जब एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म कैसी होती है, कि जो डीफॉस्फोरेटेड स्टेट होता है वो इनएक्टिव होता है और जो फॉस्फोरेटेड स्टेट होता है क्या होता है, एक्टिव होता है. So दो important hormones हैं, one is glucagon and other is epinephrine. Glucagon and epinephrine क्या करते हैं कि वो आपके पास जो है ग्लाइकोजन सिंथेस की जो है वो एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. So glycogen and epinephrine, how they will regulate this glycogen synthase, there is a whole mechanism for it. तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एडिनाइलेट साइक्लेज के थ्रू जो है वो उसको रेगुलेट करेगा, नॉट डायरेक्टली बट एडिनाइलेट साइक्लेज. सो व्हाट इज एडिनाइलेट साइक्लेज? एडिनाइलेट साइक्लेज is activated through the cyclic AMP pathway. That is, this is an external hormone, ठीक है. आपके पास ग्लूकागॉन है या एपिनेफ्रिन है, जी प्रोटीन के ऊपर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, एंड देन वो क्या करता है, दिस पाथवे इट एक्टिवेट्स एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है. दिस ग्लूकागॉन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है ये क्या करेगा, ये एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा. जब एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिवेशन होगी, सो एडिनाइलेट साइक्लेज डू, ये आपके पास क्या करता है, ये साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन करता है. हाउ इट डज द साइक्लिक एएमपी प्रोडक्शन, कि एटीपी को कन्वर्ट करता है इनटू एडीपी, ठीक है. आपके पास क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट करता है एडिनाइलेट साइक्लेट इनटू साइक्लिक एएमपी. एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी, सही. तो साइक्लिक एएमपी की एक्टिवेशन होगी है. अब ये साइक्लिक एएमपी जो है ये आगे क्या करता है, प्रोटीन की, डिफरेंट प्रोटीन्स की क्या करता है, एक्टिवेशन करता है. साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन करेगा, ठीक है. So this activated cyclic AMP, what it will do, the cyclic AMP will activate the protein kinase, ठीक है, inactive protein kinase into active protein kinase. So what the function of kinases? Kinases का function क्या होता है कि वो phosphorylation में involve होती है, that attach the phosphate group. So this activated protein kinase ये क्या करेगा,
आपके पास जो एक्टिवेटेड ग्लाइकोजन सिंथेज ए है उसकी फॉस्फोरिलेशन करेगा. As we studied before that glycogen synthase A is the activated form, जो आपके पास क्या होता है डिफॉस्फोरेटेड फॉर्म होता है. जब इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है इट इज बिकम इनएक्टिव. ठीक है, आपके पास क्या हो जाता है इनएक्टिव होता है. The phosphorylated form of the glycogen synthase is inactivated. ठीक है, इनएक्टिवेट फॉर्म. जब उसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी तो आपके पास ग्लाइकोजन सिंथेज क्या हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा. सो व्हेन द ग्लाइकोजन सिंथेज इज इनएक्टिव आपके पास क्या होगा इट विल नॉट अटैच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अटैचमेंट नहीं होगी, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी. जब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन नहीं होगी व्हेन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन then what will happen there is the inhibition of glycogenesis. ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस जो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन जो है उसको क्या कर देगा इनहिबिट कर देगा, उसकी इनहिबिशन हो जाएगी. सो ग्लाइकोजेनेसिस जब ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा इट मींस दैट सो द लेवल ऑफ द ग्लूकोज विल बी मेंटेन इनसाइड द ब्लड. ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है मेंटेन किया जाएगा. सो देन इट विल बी प्रोवाइडेड टू अदर टिश्यूज एंड इट विल बी प्रोवाइडेड टू वेरियस सेल्स टू परफॉर्म देयर वेरियस फंक्शंस. उसके डिफरेंट फंक्शंस उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो है वहाँ पे अवेलेबल होगा. सो दिस इज द होल प्रोसेस दैट हाउ दिस हार्मोन्स ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन रेगुलेट दिस प्रोसेस. कि उस प्रोसेस को कैसे जो है रेगुलेट करते हैं कि ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन का काम क्या होता है कि ये ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं. ठीक है, सो जब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं सो इट्स गोइंग टू cause the phosphorylation of the glycogen synthase और उसको क्या करेंगे इनहिबिट करेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करेंगे. ठीक है, कि ग्लूकोज को स्टोर नहीं होने देंगे, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन नहीं होने देंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड में जो है वो आपके पास जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करेगा. सो दिस इज द होल पाथवे. हमने देखा कि कैसे जो है उसकी फॉस्फोरिलेशन करता है कि ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिवेशन करते हैं. देन एडिनाइलेट साइक्लेज साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम द एटीपी टू साइक्लिक एएमपी. एंड देन साइक्लिक एएमपी क्या करते हैं प्रोटीन काइनेजेस की एक्टिवेशन करते हैं. एंड प्रोटीन काइनेजेस क्या करते हैं जो एंजाइम काइनेजेस होती है फॉस्फोरिलेशन करते हैं. सो प्रोटीन काइनेजेस क्या करेंगे कि ग्लाइकोजन सिंथेज की फॉस्फोरिलेशन करेंगे. and when the glycogen synthase is phosphorylated it becomes inactive. ठीक है, then glycogen synthase is inactive and the glycogen synthase is not available. ठीक है, जब उसके पास नहीं होगा ग्लाइकोजन सिंथेज नहीं होगा then new glucose then there will be no addition of the new glucose molecules. ठीक है, तो और जो न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एडिशन नहीं होगी तो आपके पास जो ग्लाइकोजन की है वो सिंथेसिस नहीं होगी. ठीक है, then there will be the inhibition of the ग्लाइकोजेनेसिस की सिंथेसिस नहीं होगी. उसके अलावा दिस इज द ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन के ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन क्या करते हैं कि आपके पास ग्लाइकोजेनेसिस की इनहिबिशन करते हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं. एंड इसका जो कन्वर्स हार्मोन है दैट्स द इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन का जो फंक्शन होगा वो बिल्कुल इसके रिवर्स होगा. इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है कम करता है. देयर इज एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड उसको क्या करेगा कम करेगा. तो क्या करेगा कैसे कम करेगा कि उसको जो है इट विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है, बिल्कुल इसका रिवर्स होगा. तो इंसुलिन का काम क्या होता है फॉस्फोडाइस्टरेज. ठीक है, वो क्या करेगा उसकी फॉस्फोडाइस्टरेज करेगा, उसके फॉस्फेट को रिमूव करेगा, फॉस्फोडाइस्टरेज होगा. ठीक है, साइक्लिक एएमपी को एएमपी में इनएक्टिव यहीं से उसको इनएक्टिव कर देगा इंसुलिन जो है. तो इसलिए आपके पास क्या होगा प्रोटीन काइनेजेस की एक्टिवेशन नहीं होगी. जब प्रोटीन काइनेजेस की एक्टिवेशन नहीं होगी ठीक है देन आपके पास क्या होगा कि उसकी जो है आपके पास ग्लाइकोजन सिंथेज की इनएक्टिवेशन नहीं हो सकेगी. देन इट विल आपके पास क्या होगा कि इट विल रिमेन एक्टिव, आपके पास एक्टिव रहेगा और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है वो होती रहेगी. सो दिस ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन एंड इंसुलिन इन दोनों का एक्शन क्या है बिल्कुल ऑपोजिट है. ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन क्या करते हैं उसकी इनहिबिशन करते हैं जबकि इंसुलिन जो है यहीं पे साइक्लिक एएमपी की इनहिबिशन कर देते हैं. उसको क्या कर देते हैं साइक्लिक एएमपी को इनएक्टिव कर देते हैं क्योंकि